Welcome viewers. In this part of partnership capital accounting, I am going to discuss in this video, number one, detail of transactions in between partner and partnership that is recorded in partners capital accounts in case of fixed capital as well as floating or fluctuating capital. And number two, all such detail of transactions how recorded in capital accounting that is presented in the name of a specimen of capital accounting in case of fixed capital and in case of fluctuating capital or floating capital. Now, the first part of this video is to record business transactions in between partner and partnership business. In both the cases, fixed capital and fluctuating or floating capital. The detail of transactions in between partner and partnership business are, number one, started business with cash. पार्टनरशिप बिजनेस में अगर बिजनेस के ओनर या पार्टनर के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करने के समय में जो पैसा लगाया गया है, नेचुरली ये ट्रांजेक्शंस जो है इन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप बिजनेस है. पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है इनटू देयर ओन बिजनेस, या पहले से अगर बिजनेस चल रहा है तो प्रीवियस अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी गिवन इन क्वेश्चन इज नोन एज ओपनिंग कैपिटल वैल्यू. Second point of transactions in between partner and partnership is interest on capital. As we know, capital introduced by partner and interest will be taken by partner from their own business. It means this transactions also related in between partner and partners. Number three is drawings. Drawings means amounts withdrew by partner from their own business. It's also transactions in between partner and partnership business. Interest on drawings. When drawings withdrew by partner from their own business, naturally interest will be paid by the partner from their own business. This transactions also in between partner and partnership business. Salary or commission to partner. जैसा कि हम जानते हैं सैलरी और कमीशन पार्टनर का क्लियरली मेंशन रहेगा, तभी इन पार्टनर्स और पार्टनरशिप बिजनेस के बीच का लेन देन माना जाएगा. जनरली सैलरी और कमीशन मीन्स सैलरी और कमीशन रिलेटेड विद थर्ड पर्संस और एम्प्लॉय. उस कंडीशन में इस ये ट्रांजेक्शंस दोनों के बीच का नहीं है, मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस के बीच का नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं आई. क्लियरली मेंशन होना चाहिए सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. स्पष्ट रूप से किसी भी साझेदार को दिया जाना चाहिए या सभी साझेदारों को दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व्स अनडिवाइडेड प्रॉफिट. बिजनेस में जो रिटेन्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, जो आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, या रिजर्व या जनरल रिजर्व का वैल्यू. नेचुरली ये अमाउंट है बिजनेस में, लेकिन है किसका? पार्टनर का. तो ये भी ट्रांजेक्शन इन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप बिजनेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज goodwill. Goodwill is the value created by the efforts of partner or owner of the business. This value is also related with partner. जैसा कि हम जानते हैं ख्याति भी कौन सा मूल्य है? जो कि साझेदार या मालिकों के प्रयास से बनता है. यह भी मूल्य बिजनेस का नाम है, बिजनेस का नाम का वैल्यू है, लेकिन किसका प्रयास है? तो ओनर और पार्टनर का. सो दैट दिस अमाउंट ऑल्सो claimed by partner. और यह पैसा भी पार्टनर का ही है, अर्थात यह बिजनेस और पार्टनर के बीच का लेन देन है. इसकी भी अकाउंटिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग में करेंगे. इस तरीके से ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस है टू बी रिकॉर्डेड अंडर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग. Now, the next part of this video is about how to prepare partners capital accounting in both the cases, fixed and fluctuating. On the basis of above detailed transactions between partner and partnership business, now
it is essential to present or how to record the above transactions in partners capital accounting. For this purpose, I am going to present a specimen of partners capital accounting. In case of fixed capital, as we know, there are two accounts is needed or essential to prepare in partners capital accounting. Number one is partner capital account, number two is partners current account. जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर के लेन देनों को जानने के बाद ये हमारे सामने में समस्या है कि इसको कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग में लिखेंगे। इसी उद्देश्य से हम आपके सामने में पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग का नमूना या स्पेसिमेन पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये नमूना दो कंडीशन में कैपिटल अकाउंटिंग बनाई जाती है, दोनों में हम प्रेजेंट करेंगे। नंबर एक है हमारा स्थिर पूंजी की स्थिति, फिक्स्ड कैपिटल। इस स्थिति में कैपिटल अकाउंट के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। As we know, only capital value of partner will be recorded in partners capital accounting in case of fixed capital. Other transactions relating or in between partner and partnership business are recorded in partners current account. मतलब हमारे कहने का है कि हम जैसा कि जानते भी हैं कि जब फिक्स्ड कैपिटल की स्थिति में कैपिटल अकाउंटिंग बनाते हैं तो पहला अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ मालिक या पार्टनर के द्वारा लगाए गए पैसे को लिखा जाता है, कि वैल्यू को लिखा जाता है, अमाउंट्स को लिखा जाता है। इससे अलग जितने भी लेन देन जो पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस के बीच का है, उसके लिए अलग अकाउंट बनाई जाती है जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसमें लिखेंगे कैसे? तो लिखने का प्रिंसिपल या रूल में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसा कि हमारा रूल है डबल एंट्री सिस्टम, और इस रूल के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, यहां भी करेंगे। उस रूल में कहा जाता है एसेट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में। और कैपिटल हमारा लायबिलिटीज नेचर का, इसलिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वैल्यू को लिखेंगे। अगर इसी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया पार्टनर्स के द्वारा, देन बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। अगर हमारा बिजनेस पहले से पार्टनर से बिजनेस चला रहा है तो उस कैपिटल अमाउंट को बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इस तरीके से वैल्यू लिखने के बाद, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाना है, लास्ट में डिफरेंस निकालेंगे। द डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ बैलेंस शीट और टोटल मैच कर जाएगा। सेम अमाउंट हमें डेबिट में भी बैलेंसिंग में लाना है। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में भी उसी प्रिंसिपल से जो कैपिटल को इंक्रीज करने वाला आइटम है, कैपिटल को बढ़ाता है जो लेन देन, हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जो कैपिटल को डिक्रीज करने वाला लेन देन है, घटाने वाला लेन देन है, उसे हम जो कैपिटल से माइनस अब तक करते आ रहे हैं उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट के नाम का भी बैलेंस हो सकता है, प्रीवियस या पहले का। अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में करंट अकाउंट के नाम का बैलेंस दिया है तो हमें देखना है कि एसेट साइड में दिया है कि लायबिलिटीज साइड में। अगर एसेट साइड में दिया है तो बैलेंस बीडी डेबिट में करेंगे। ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस। और अगर लायबिलिटीज में दिया गया है तो क्रेडिट में लिखेंगे ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस। दोनों ओपनिंग वैल्यू है, पहले का दाम। लायबिलिटीज साइड में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे करंट अकाउंट के बैलेंस के नाम से, और अगर एसेट्स में होगा तो डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में उन्हीं आइटम्स को लिखेंगे जो कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट ऑफ पार्टनर है, उससे उसका कैपिटल वैल्यू बढ़ेगा। सैलरी और कमीशन क्लियरली मेंशन हो टू पार्टनर, साझेदार को अगर वेतन और कमीशन दी जाती है तब भी उसका कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा। और इसके अलावा रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, पीएल अकाउंट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, ऐसा लाभ जो रिटेन करके बिजनेस में रखा गया, आज तक नहीं बांटा गया है, इनकी अकाउंटिंग भी हम क्रेडिट साइड में करेंगे। और लास्ट में गुडविल अमाउंट को लिखेंगे। गुडविल जैसा कि जानते हैं अमाउंट ऑफ पार्टनर है, इसलिए उसका कैपिटल वैल्यू बढ़ाने का लेन देन है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस तरीके से डेबिट में क्या लिखेंगे? तो डेबिट में हम जानते हैं ओपनिंग बैलेंस यदि है तो लिखने के बाद ड्राइंग्स अमाउंट को लिखेंगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, ये सब पहले से कैपिटल से लेस करते रहे हैं। और पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट लॉस अमाउंट अगर है, नेट डिविजिबल लॉस है, तो उसे भी लिखा जाएगा। इस तरीके से पार्टनर करेंट अकाउंट के सभी आइटम को प्रेजेंट करने के बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं, डिफरेंस आइदर साइड, किसी भी साइड में हो सकता है। क्रेडिट में होगा तो बैलेंस सीडी क्रेडिट में दिखलाएंगे, डेबिट में होगा तो बैलेंस सीडी डेबिट। क्रेडिट में होने का मतलब है डेबिट अमाउंट इज मोर टू क्रेडिट अमाउंट। रफ में हम टोटलिंग कर लेंगे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ बैलेंस सीडी। अगर हमारा डेबिट ज्यादा है तो फिर यही काम हम क्रेडिट में करेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और स्थिर की स्थिति में पूंजी का जब हम लेखांकन करते हैं तो कैपिटल अकाउंटिंग का नमूना क्या होगा। जैसा कि जानते हैं, इस कंडीशन में एक ही अकाउंट बनता है फॉर द पर्पस टू प्रिपेयर टू फाइंड कैपिटल पोजीशन और डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड दैट अकाउंट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है। यहाँ एक ही अकाउंट में सभी ट्रांजेक्शंस को लिखना है, रूल वही रहेगा। मतलब सबसे पहले कैपिटल वैल्यू अगर दिया गया है पहले से, कैपिटल बैलेंस अगर पहले से है तो उसे लिखा जाएगा। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस तो बाय बैंक के नाम से लिखेगा। कैपिटल को इंक्रीज करने वाला, ऐड करने वाला जितना भी आइटम है सब क्रेडिट में जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट रहने से। इसके अलावा रिजर्व्स अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, अगर ये बातें दी हुई हैं। इसके अलावा गुडविल, और जो डिक्रीज के नेचर का है, जो कैपिटल वैल्यू को डिक्रीज करता है, जस्ट लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट डिविजिबल लॉस। और लास्ट में हम डिफरेंस निकालेंगे। इस अकाउंट में प्रायः डिफरेंस डेबिट में आएगा, मतलब क्रेडिट अमाउंट इज मोर, डेबिट अमाउंट इज लेस, एंड डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ बैलेंस सीडी। इस तरीके से हमारा स्पेसिमेन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थियोरेटिकली इस स्पेसिमेन को जानने के पश्चात हमारे सामने में फिर भी बिना प्रैक्टिस के, बिना सवालों को बनाए हुए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं आएगी, समझ नहीं आएगा। इसी कारण से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, सवाल और उसका समाधान की जानकारी हम कराएंगे। दोनों ही अकाउंट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर जरूरत है तो कैसे बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड के कंडीशन में भी और फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में भी कैसे प्रिपेयर होगा, हम अगले वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से सवाल के या क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके दिखलाएंगे। थैंक यू।